Good morning, my dear student. I am Ramveer from Maples Academy. This is a new chapter of class 11th, Geography, chapter number 8, Composition of Atmosphere. This chapter is Composition and Structure of Atmosphere. So, do you know that what is atmosphere? This is our surroundings. In earlier classes, you already know about the atmosphere, pressure, wind, and structure, stratosphere, troposphere, types of clouds. You have already studied in class 7th, I think. So let's begin composition of atmosphere. So what is the composition of atmosphere? This is in this picture. You can see the composition atmosphere. The atmosphere is a composed of gases, water, vapor, and dust particles. And these are table 8.1. अगर आप देखें table 8.1, this is the table 8.1 that constitute of these types of material. Percent nitrogen, N2 oxygen, argon, carbon dioxide, neon, all these have the good percentage. Different gases have the percentage of different types in the PPT. So this is the composition of some atmospheric gases. Next, gases. So yes, this one also composition at count. This is the part of that earlier part: helium, krypton, and xenon. Okay, all these are the proportion have the good in the varies of all percentage. So this is the percentage of these gases. Now this is the gases. Gases are the main part of the atmosphere. Carbon dioxide is meteorologically a very important gases. आप लोगों को पता है कितनी important गैस होती है और कहाँ कहाँ पर ये पाई जाती है और कितने एरिया में जो है ये कवर करती है, तो ये सब इसके मेन पार्ट हैं अगर देखा जाए तो gases is also a main part of this portion. Now water vapor क्या होता है? This is the water vapor is also a variable gas in the atmosphere which decrease with altitude. आपको पता होना चाहिए वाटर वेपर जो काम करता है अकॉर्डिंग टू द हाइट काम करता है. आप लोगों को पता होना चाहिए इक्वेटर से नॉर्थ एंड साउथ की तरफ अगर हम जाते हैं तो वाटर वेपर जो होता है उसकी क्वांटिटी क्वालिटी भी घटती बढ़ती चली जाती है. नेक्स्ट, This is the atmospheric has insufficient capacity of solid particles. कुछ solid particle भी होते हैं, dust particle भी आते हैं इसमें. This is the main part of this atmosphere, and all these have conducted air current में transported to the great height. जब बड़ी ऊंचाई पर जाते हैं जहाँ पर सैटेलाइट वगैरह होते हैं स्ट्रेटोस्फीयर के बाद, तो उसमें क्या होता है डस्ट पार्टिकल बढ़ते चले जाते हैं जिससे बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न होती है for the astronauts and another persons. Next, this is the structure of atmosphere. Look here, this is the structure of atmosphere. ये स्ट्रक्चर है एटमॉस्फेयर का, यहाँ पर आप देख रहे हैं. दिस इज द लेयर्स अगर देखा जाए, एंड इन दिस लेयर फर्स्ट इज ट्रोपोस्फियर 12 किलोमीटर अप्रोक्स हाइट के अकॉर्डिंग दी गई है. फ्रॉम इक्वेटर एंड फ्रॉम पोल रीजन से डिफरेंट होती है, बट दिस इज अ ट्रोपोस्फियर. देन स्ट्रेटोस्फियर 50 किलोमीटर, देन मेसोस्फियर 18 किलोमीटर अबव. स्ट्रेटोस्फियर का एक पार्ट है ओजोन लेयर जो है वो 30 से 50 किलोमीटर अप्रोक्स उसमें पाई जाती है. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट गैस फॉर अस. ठीक है. देन थर्मोस्फियर हो गया 320 किलोमीटर ये हो गया, और एक्सोस्फियर ये सबसे ऊपर वाला भाग. तो दिस इज द स्ट्रक्चर, ये आपको पता होना चाहिए. ये हमारा गैस का एक वो दिया गया है. नेक्स्ट इधर दिया है इसमें, ये देखिए आप लोग, दिस इज अनदर वन. लुक हियर, दिस इज अनदर वन इंपॉर्टेंट गैसेस पार्ट जो देखा जा रहा है हमारा. यस, ये देखिए इन दिस पार्ट troposphere, stratosphere according to height, stratopause, mesosphere, mesopause, thermosphere. Actually these are also the main layers of the atmosphere which are included in this layers. जो उनके सब पार्ट है उसमें इनको इंक्लूड कर दिया गया है. नेक्स्ट इसमें आता है हमारा नेक्स्ट नहीं sunlight crossing the ozone layer. Do you know about the ozone layer? मैंने अभी बताया था आपको. ozone layer is the main part of the stratosphere. इसका मेन पार्ट है
और इसी में क्या होता है, ओजोनल डिफ्लेक्शन जो होता है, अल्ट्रावायलेट जो रेज होती है उनको ऑब्जॉर्ब कर लेता है। तो ये भी एक मेन इसका पोर्शन दिया गया है, ओजोन लेयर O3। नेक्स्ट Stratopause, this is the another stratopause the from early mesopeak the level, this is the layer of the atmosphere, जो अपने आप में ये बहुत बड़ी लेयर है और जो है एक इंपॉर्टेंट पोर्शन है। नेक्स्ट इसमें दिया गया है मेसोस्फीयर, थर्मोस्फीयर, मेसोस्फीयर, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ दिस वन, सो इट इज अ मेन पार्ट ऑफ द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। नाउ मेसोस्फीयर, दिस इज द डिफरेंट लेयर्स, अगर देखा जाए तो उनको डिस्क्राइब किया गया है। दिस इज द एटमॉस्फेयर अबव द स्ट्रेटोस्फीयर विच एक्सटेंड अप टू हाइट ऑफ 80 किलोमीटर हाइट में पाई जाती है। इसका यह आकार भी इसी तरह से दिया गया है जिसको हम उसमें कर सकते हैं। तो ये भी एक देखा जाए तो एक इंपॉर्टेंट लेयर का पार्ट बन जाती है और इसको ऐसे ही मतलब जो ऑलमोस्ट वे में भी इसको किया गया है, ठीक है ना। नेक्स्ट दिस इज द मेसोस्फीयर, अब अगर शॉर्ट फॉर्म में बनाऊं तो इस तरह से होता है। नेक्स्ट इसमें है हमारा थर्मोस्फीयर हो चुका है। नेक्स्ट दिस इज द थर्मोस्फीयर लेयर, जो प्रेजेंटेशन दिया गया है इसमें थोड़ा सा इस तरह की थर्मोस्फीयर एक लेयर है। एंड अप मेन पार्ट एक्सोस्फीयर का मतलब ब्रह्मंडल, इट मींस दिस इज नॉट अप्रोच बाय द ह्यूमन बीइंग्स, ठीक है। और यहाँ पर टेम्परेचर एक्सट्रीमली हाई हो जाते हैं और इसमें क्या होता है, ये लेयर सबसे ऊपर वाली लेयर कहलाती है। एलिमेंट ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट, दिस इज द मेन पोर्शन। व्हाट आर द एलिमेंट ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट, कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो वेदर क्लाइमेट के होते हैं, जैसे प्रेशर इसमें आ गया, टेम्परेचर, प्रेशर, wind, humidity, clouds and precipitation, all these are the elements। ये बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है कि भाई कौन कौन से इसमें इसके एलिमेंट्स दिए गए हैं। नेक्स्ट all these element are present here। forms of precipitation क्या है भाई, है ना, कैसे इसको हम कैसे कैसे यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसमें विंड का भी दिया गया है, all clouds डिफरेंट टाइप्स। तो जो ये चैप्टर है हमारा एटमॉस्फेयर कंपोजिशन एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर, दिस इज अ इम्पोर्टेंट चैप्टर इन विच वी स्टडी अबाउट द कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर। सो माय डियर स्टूडेंट, थैंक्स।